Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 23rd July 2021 and I am teaching you chapter number 4. Name of the chapter, Eating Right. So, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video we are talking about the vitamins and minerals. So, what are vitamins? Today I am doing only recapitulation. If you want to detail study, you want to do the topic vitamins and minerals, then you please watch the previous video. So, vitamins and minerals, what are they? These are protective food and these are required by our body in a less amount. ठीक है, ये हमारी बॉडी को लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं. ठीक है, vitamins and minerals. And from where we are getting this? We are getting vitamins and minerals from the fruits and vegetables. Okay, we are getting these vitamins and minerals from fruits and vegetables. These are also known as micronutrients because fat, carbohydrates and protein, they are known as macronutrients because they are required in large amount by our body. But these are nutrients and these are required in a less quantity, in a less amount in our body, that is vitamins and minerals. Okay, and these are protective food. These protect our body from the different diseases and everyone has the immune system. If our body is infected by any diseases or by any microorganisms, so these fight against the infection and immune system is present in all of us. Okay, now today student we will start with a new next topic is water and roughage. Okay, so student, the topic which I covered in my today video, that is water and roughage. See student, water and roughage, these are not the nutrients. ठीक है, ना तो वाटर न्यूट्रेंट है ना तो बेटा रफेज न्यूट्रेंट है. पहले एकदम ध्यान से सुन लो. When we are talking about the water and roughage, both of them are not the nutrients, but they are very essential in our body. दोनों ही न्यूट्रेंट नहीं है. जैसे न्यूट्रेंट के बारे में मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, these all are the nutrients which are required by our body because our body cannot produce these nutrients. So from where we are getting these nutrients, student? We are getting these nutrients with different types of the food which we are eating. We are getting this nutrient from different types of a food that which we are eating. Okay, but even we require water and roughage also in our diet. So why, how the water is very important? 70% of our body, that is our water. Okay, 70% बॉडी का क्या, वाटर ही है. ठीक है, और वाटर और रफेज क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. Okay, water helps in the digestion of food and drinking water helps maintaining in the balance of body fluids. ठीक है, and water help in digestion, absorption, circulation, creation of a saliva, transportation of a nutrients, and it also maintain our body temperature. Okay, it remove toxins from the body in the form of a urine, and that is the reason student we should drink plenty of water. So few points
in your book it is given in very shortcut, so few points I am writing on the board and then I will explain you. Water, okay, so drinking water helps drinking water helps maintain the balance of drinking water, maintain the balance of body fluids. Water helps in digestion, absorption, circulation, creation of saliva, transportation, of nutrients and it also maintain our body temperature. Now see, ड्रिंकिंग वाटर हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ द फ्लूइड, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में चीजें उनका बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, क्रिएशन ऑफ सलाइवा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट आल्सो मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर Now see student, some of now वाटर हेल्प इन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने आप लोगों को विटामिन्स के बारे में जब बताया था, विटामिन्स में एक्सप्लेन कर रहा था, दैट टाइम आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट विटामिन ए, डी, ई एंड के दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड विटामिन बी एंड सी दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। सो बहुत सी चीजें भी ऑब्जॉर्ब होती हैं किसमें, आपके वाटर में, दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो एब्जॉर्प्शन भी करता है, सर्कुलेशन,
transportation. Okay, first I discuss this creation of saliva. Saliva is present in our mouth and it is secreted by the salivary gland. जो आपका सलाइवा है, जो आपके माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपके फूड में मिक्सअप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द टंग. ठीक है, टंग के हेल्प से ही आपके फूड में मिक्सअप हो जाता है. देन यू सॉलो दैट फूड थ्रू योर फूड पाइप, इट गोज इनटू द स्टमक. ओके, सो जो सलाइवा का जो क्रिएशन हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? वाटर ही रिस्पॉन्सिबल है. हम कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो यहाँ काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी. वो ये सोच रहे होंगे कि जब सर ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो सर ने बोला था कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, जितने भी फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसमें ऑब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स सारे ऑब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं एंड देन दीज न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द ब्लड. ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी बहुत से बच्चों को कि सर तो बताए थे कि सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होती हैं और ये न्यूट्रिएंट ब्लड वेसल में चले जाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द हार्ट द ब्लड इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ सर इज सेइंग ऑब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, क्रिएशन ऑफ सलाइवा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो बेटा मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किए, जो आपका ब्लड है, ब्लड का 70 से ऊपर %, क्योंकि ब्लड इज इन विच फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में है आपका ब्लड. तो ब्लड का जो 70-80% जो पोर्शन है ना, जो पार्ट है, वो वाटर ही तो है. ब्लड लिक्विड फॉर्म में है. द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड. इज इट क्लियर? द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, बट जो वो लिक्विड फॉर्म है, वो पूरा जो पार्ट है ब्लड का, वो पूरा का पूरा क्या आपका वाटर ही है. अब आप, आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, कि ब्लड में चीजें ऑब्जर्व भी हो रही हैं, ब्लड में सर्कुलेशन भी हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो ब्लड का 70-80% पार्ट क्या है, वाटर ही है. सो ऑल द थिंग्स, दैट इज द रीजन मैंने लिखा कि ऑब्जर्प्शन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स and it also maintain our body temperature. ठीक है, and it also maintain our body temperature. जो आपका सलाइवा आ रहा है secreted by the salivary gland, so for this also water is responsible. डाइजेशन में भी, डाइजेशन में बहुत से डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो फूड को फर्दर और स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, वहां भी वाटर ही है. ठीक है, वहां भी क्या है, वाटर ही है. ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ए न्यूट्रिएंट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो भी वाटर ही है, क्योंकि ब्लड का जो 70-80% पार्ट क्या है, वो वाटर ही है. एंड ब्लड इज इन विच फॉर्म? ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड. ब्लड किस फॉर्म में है बेटा? ब्लड लिक्विड के फॉर्म में. ठीक है, ब्लड किस फॉर्म में है बेटा? ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड फॉर्म. तो दैट इज द रीजन. देखो, डाइजेशन है, ऑब्जॉर्प्शन में मैंने तुम लोग को बताया ही कि बिना वाटर के विटामिन बी और सी ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती बॉडी में. क्यों? क्योंकि विटामिन बी और सी ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है. ये किसमें सॉल्युबल है? वाटर में सॉल्युबल होती हैं. अगर वाटर नहीं होगा तो ये विटामिन बी सी, आप इतने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के आपके बॉडी के अंदर जाएंगे पर ये यूजलेस होंगे, क्योंकि ये किसमें डिसॉल्व होते हैं? वाटर में होते हैं. दैट इज द रीजन वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंसिस्टेंट. इट इज नॉट ए न्यूट्रिएंट. ये न्यूट्रिएंट नहीं है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ नहीं है, फिर भी वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब सलाइवा बता ही दिया, डाइजेशन का हो गया. अब मेंटेन ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर. जब हमें बहुत ज्यादा, हम ऐसे वेदर में होते हैं जहाँ बहुत हॉट हो, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि खूब स्वेट होता है, हमें बहुत पसीना होता है. ठीक है, जब हम ऐसे वेदर में होते हैं जहाँ पे वेदर क्या होता है, बहुत हॉट होता है, तो हमें बहुत ज्यादा पसीना होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा हमें स्वेट होता है. तो व्हाट इज, तो जो हमारा स्वेट, जो वाटर हम लोग लूज करते हैं, सो इन दिस मैनर इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. वो बॉडी को क्या करता है, कूल रखता है. ठीक है, जो बॉडी की हीट है वो एज ए स्वेट बाहर निकलती रहती है और हमारी बॉडी क्या, कूल रहती है. ठीक है, तो इट आल्सो
मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सिन्स को रिमूव करना, ठीक है। सो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द किडनी, व्हाट दे फिल्टर द ब्लड and remove the wastage in the form of a urine, ठीक है। they filter the blood and remove the waste in the form of a urine। तो इस तरह ऐसे चीजें जो हमारे बॉडी की यूज की नहीं है तो उनको भी वो किडनी के थ्रू क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड का 70-80% वाटर ही है। तो इन दिस फॉर्म यूरिन के फॉर्म में टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। यूरिन के फॉर्म में टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं बेटा, आउट हो जाते हैं। तो दिस इज आल्सो पॉसिबल ड्यू टू द वाटर, ठीक है। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू वाटर। सो फ्यू मोर पॉइंट आई विल राइट ऑन द बोर्ड। It removes toxins from our body, ओके। इट रिमूव टॉक्सिन्स, ठीक है, इट रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम भी कौन करता है बेटा, आपका वाटर ही करता है। कैसे, जो अभी जस्ट मैंने बताया। इसीलिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, कम से कम 6 to 8 या मोर देन इससे आप डेली वाटर पिया करो। कभी कभी होती है नहीं प्यास लगी है, थर्स्टी नहीं फील कर रहे हो, फिर भी हमें हर रेगुलर इंटरवल पे वी शुड ड्रिंक सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वी शुड ड्रिंक सम क्वांटिटी, क्योंकि वाटर जितना ज्यादा पियोगे उतना बेटर आपका किसका फंक्शन होगा, किडनी का, ठीक है। उतना बेटर आपकी फंक्शन कौन करेगी, किडनी। सो यू वांट दैट योर किडनी शुड बी हेल्दी। अगर आप चाहते हो आपकी किडनी बिल्कुल हेल्दी रहे तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। जितना ज्यादा पानी पियोगे ब्लड उतना बेटर फिल्टर होगा, और बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो आउट होती रहेंगी फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए यूरिन, ठीक है। दे आर आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए यूरिन। सो फॉर अ गुड फंक्शन ऑफ योर किडनी प्लीज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। And another important thing is that if you don't, if you do not, if you do not drink enough water, if you do not drink, if you do not drink enough water, if you do not drink enough water, the food nutrients, the food nutrients, the food nutrients will not go will not go to the go to other body
parts. Okay. Our body is mainly 70% वेट किसका, वाटर ही का है. Our body is mainly composed of water. Our body is formed of cell. Our body is formed of cell. They contain lot of water. They contain lot of water. So these full explanation about the water. Okay, our body is mainly composed of water और our body is formed of cell. सबसे छोटे पार्ट्स जो हैं बॉडी के जिससे हमारी बॉडी बनी है बेटा उसको सेल्स बोलते हैं. ठीक है. सो आवर बॉडी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड दे कंटेन लॉट ऑफ वाटर. Is it clear? So this is all about water. Water help in the digestion. Okay, water help in the digestion है, absorption है, circulation है. ठीक है. There are many things which and circulation of the nutrients to different parts of the body, and it also remove the toxins from the body in the form of a urine. Okay. और देखो वाटर हर चीज में हमें मिलता है. ऐसा नहीं है कि आप वाटर ड्रिंक करते हो तभी आपको मिलता है. जो आप इतने ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब खाते हो तो उसमें भी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो रिच अमाउंट ऑफ वाटर होता है. जिसमें क्या होता है बेटा, रिच अमाउंट ऑफ वाटर होता है. जैसे वाटरमेलन दिया है, कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर. सो क्योंकि समर्स में वी लॉस लॉट ऑफ वाटर ड्यू टू द हॉट वेदर. सो इवन वी आर गेटिंग वाटर बाय ईटिंग डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो. जो हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं बेटा, इससे भी हमारी बॉडी में वाटर आता है. ऐसा नहीं है कि हम ड्रिंक कर रहे हैं तो ही वाटर मिल रहा है. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे रफेज. Now we will talk about roughage. Next topic, rough age. So first of all, student understand what is roughage. So roughage is the part of the body. roughage क्या है बेटा? Roughage is the part of the body. Roughage is the part of a plant. Okay, sorry. What is a roughage? Roughage is a part of a plant which is not digested by our body. ठीक है. roughage बेटा प्लांट्स का वो पार्ट है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती. ठीक है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं. ठीक है. रफेज आपकी बुक में दिया है, रफेज आर द फाइबर्स.
सो अब फाइबर क्या होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेके कि व्हाट आर फाइबर्स। देखो बेटा, जब आप फ्रूट्स खाते हो या वेजिटेबल्स में देखते होगे, सब्जियों में या फ्रूट्स में रेशे होते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको फ्रूट्स में मिलेंगे और किस में मिलेंगे, वेजिटेबल्स में मिलेंगे, ठीक है। ये जो रेशे होते हैं सब्जियों में, जैसे कभी आपने बनाना खाया होगा, अगर आप उसके छिलके निकाल देते हो, कवरिंग उसकी निकाल देते हो एंड आप उसको टच करते हो उसके अपने हैंड से उस फ्रूट को, तो कुछ स्टिकी आपको जैसे लगता है ना, स्टिकी टाइप का कुछ फील होता है, तो यही क्या है, फाइबर्स है। ये क्या है बेटा, ये फाइबर्स है, ठीक है। जैसे आपने तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर। तो ये प्लांट का वो पार्ट है बेटा जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, ठीक है, बट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द स्टमक रेगुलरली। स्टमक को रेगुलरली क्लीन करने के लिए, ठीक है, इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि व्हाट हैपेंस, द फूड विच इज ऑफ नो यूज, ऐसा फूड जो हमारे किसी यूज का नहीं होता है, ठीक है, ऐसा फूड जो हमारे किसी यूज का नहीं होता है, तो हमारी बॉडी उस फूड को क्या करती है, उस वेस्ट फूड को आउट कर देती है बॉडी से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए फेसेस। सो ड्यू टू दिस रफेज स्टूडेंट, ड्यू टू दिस रफेज, इस रफेज की वजह से बेटा जो फूड है बड़ा स्मूथली बॉडी से आउट हो जाता है। किसकी वजह से होता है, रफेज की वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू रफेज, रफेज की वजह से फूड जो है स्मूथली, क्योंकि ये फाइबर्स हैं, रेशे हैं, तो जो आपका जो फूड है, जैसे आप सभी बच्चे पॉटी जाते हो ना, तो एंड वेस्ट वो क्या है, हमारा वेस्ट फूड है, एंड इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी, इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस, इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस। तो यही क्या है, आपका रफेज, ठीक है, ये रफेज है। तो आपकी बॉडी को रेगुलरली, आपके स्टमक को क्लीन करने का काम कौन करता है, रफेज करता है। सो रफेज इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट which our body unable to digest, okay, it is the indigestive portion, it is the indigestive portion of food derived from plants, okay, even it is not, even it is not digestive, even it is not digested by our body, but it is very helpful for us,
it help us our body. It help us our body to get rid of undigested food. Okay, thank you student.